All right. So thank you everyone for joining today's session. So, sir, we will focus on all those questions related to special education. So most of the parents have shared some questions with us at the time of registration. So I already shared with you. I hope you got it or WhatsApp. Yes, yes, I received. All right. So first we will go through those questions, and then if any parent has any question, then they can ask in chat, and from there we will start picking up those questions. Right. All right, sir. Over to you. All right. Okay, so thank you, sir. Good evening, everyone. It's always my pleasure to be here on this platform. So I hope this session would be interactive, and if I could help you all in any way, that would be my really uh, pleasure. So if I start with general, like today's topic is generally question answer or what is the importance of special education for children with autism. Okay, so generally if I see the current scenario of education of children with specifically uh, children with autism, so generally we feel we start education, it is my personal experience. We don't start education at the right time. What I have noticed in my experience. Okay, we focus on generally to cater our children's sensory needs. So we go to the occupational therapist, speech therapist. Obviously, when a child is diagnosed with autism, so the major issues are language and behavior, like sensory issues are there. So as a parent, it's very common that we focus on that particular area. But generally, होता क्या है कि when we think of like starting education for our children, then it's already very late. है ना? So by the age like 4 to 5 year, we start consulting educator. Then by that time, the child is already lacking in the area of academics. So scope of mainstreaming or inclusive education is very important, that we start education at very early stage at the right time. So we cannot segregate education from the other therapies. Okay, the importance of therapies obviously is very much needed for our students, our children with autism, and education is also a kind of therapy, right? So as early we start educating our children, or we work on the school readiness areas. I very much focus on the school readiness program. Okay, so without uh, focusing on that area, we cannot think of inclusive education or proper mainstreaming of our children in general, so-called general schools, right? So that is the main thing. We have to make aware ourselves. And many times parents when come to us, they consult with me and they say, sir, no one referred me for an education therapist or for the special education. Okay, so we were very much focused on occupational therapy, language part, but we never think of education. Okay, so okay, that's a current scenario. Now things are changing. Now we are providing education to children of like 1.5 year of age group, 2 years of age group. So now it's changing. So I hope I could cater the needs or whatever the questions you have regarding the education of your children's. Okay. So, sir, may I take the questions or you will ask me the questions which you want to answer me? Pramod sir. Okay, I think he is on mute. Okay, so sir already have sent me the questions where one parent is asking how to teach maths of everyday life, like calculating of buying things, the money, and the other uses of math in day-to-day life. Also, how to teach English speaking. Okay, so specifically when we are teaching the maths concept, okay, so we have to check the current level of the child. Okay, क्या बच्चे का जो लेवल है वो उसने प्री मैथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अचीव कर लिए है क्या. सो बेसिकली मैथ में हम दो चीजों पे काम करते हैं.
right? When we are targeting a mainstreaming or the inclusive education, then we focus on proper pre-math concept. Like हम लोग जो मैथ के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक बिगिनिंग फ्रॉम द numeracy, general meaningful counting, simple calculations, addition, subtractions, word problems. So we focus on that area because कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है दैट इज स्कूलिंग वाइज ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को रेडी करना है, बच्चे को प्रिपेयर करना है, राइट। एंड कुछ वाले हमारे बच्चे उस एज ग्रुप के हैं जो या तो कहीं स्पेशल स्कूल में हैं या सपोज दैट होम स्कूलिंग कर रहे हैं, जिनका एज ज्यादा है, सपोज दैट दे आर 10 प्लस 12 प्लस, एंड देन वी if we focus on pre-math concepts or if we go in a hierarchy of mathematical concept, then it is little difficult for them. Then we take the practical concepts, है ना। हम लोग जैसे रीडिंग में साइट वर्ड्स लेते हैं, ऐसे ही मैथ में हम फंक्शनल मैथ की बात करते हैं। सो आई थिंक इफ आई टेकिंग द क्वेश्चन राइट, तो आपका मेन है कि प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट जैसे मनी कॉन्सेप्ट है, टाइम कॉन्सेप्ट है, उनको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे को, राइट। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले बच्चे को एक सिमुलेशन ट्रेनिंग दें। जैसे घर में ही आप पहले तो ये हमें श्योर करना पड़ेगा कि बच्चे को नोट्स का आइडेंटिफिकेशन है, क्या वो कॉइन्स को आइडेंटिफाई करता है, नोट्स को आइडेंटिफाई करता है, ये हमें चेक करने की जरूरत है, राइट। तो अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन है, वो नोट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, देन वी कैन प्रोवाइड हिम और हर द सिमुलेशन ट्रेनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं घर में ही एक बच्चे को सिमुलेशन ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर देते हैं, जिसमें हम जैसे हमने घर में बहुत सारे हमारी चीजें आती हैं, सपोज दैट हमारे यहाँ अलग अलग चिप्स के रैपर्स हैं, है ना, सोप आया, शैम्पू आया, तो उन सबके हम रैपर्स और बॉक्सेस कलेक्ट करते हैं और एक हमने शॉप की जैसा ही सिमुलेशन क्रिएट कर देते हैं, और उसमें हम बच्चे से पूछते हैं, ओके आपको सपोज दैट ये चिप्स का पैकेट लेना है तो आपको 20 रुपीज देने होंगे, तो आप मुझे ये 20 रुपीज का नोट निकाल के दो, देन आई कैन गिव यू द चिप्स पैकेट। इवन हम लोग उसमें बेस्ट है कि रियल चीजों का भी यूज करें, चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट के पैकेट हो गए, या जो भी बच्चे की खाने की चीजें हैं जो घर में बच्चा यूज करता है, या घर जो बच्चे की डाइट के अकॉर्डिंग जो बच्चा खाता है, उनकी हम रियल चीजें ले सकते हैं और उनके प्राइस। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक तो है कि वो करंट एक राइट अमाउंट आपको दे पाए, दैट्स अ वन पॉइंट। दूसरा एक होता है हम बच्चे को प्राइस रीडिंग भी सिखाते हैं, है ना, जिसमें वो टैग को पढ़ना होता है कि एमआरपी क्या है, तो एक एमआरपी रीडिंग का अलग स्किल हो गया, है ना। तो एमआरपी रीड करके एक उतना सर्टेन अमाउंट बच्चा आपको दे, तो दैट वी कैन टारगेट। ऐसे ही टाइम कॉन्सेप्ट को जहां तक है, तो बहुत अर्ली स्टेज में ही हमें टाइम को अपने डेली रूटीन के साथ एसोसिएट करना है, राइट। जैसे सपोज बच्चा मॉर्निंग में स्कूल जाता है ना, तो हमें एसोसिएट कर देना है टाइम के साथ, ओके यू गो टू स्कूल बाय 7 o'clock, ओके यू कम बैक फ्रॉम स्कूल 12 o'clock, है ना, यू गो टू द पार्क एट 4 PM। तो वो टाइम को हमें बच्चे की जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जो एसोसिएशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं वो इनिशियली हमें करना होता है। उसके बाद हम बच्चे को टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्लॉक का यूज करके, लाइक 1 hour का पहले हम सिखाएंगे उसको, देखेंगे कि वो हैंड का आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा है, जैसे बिग हैंड, स्मॉल हैंड इन द क्लॉक। सो वो हमें चेक करना है। अगर वो कर पाता है तो हम एक सीक्वेंस में पहले अब विद इन 1 hour का हम टाइम इंटरवल सिखा सकते हैं, ठीक है, कि आप ओनली स्मॉल व्हेन द बिग हैंड ऑन 12, व्हेन स्मॉल हैंड आपको रीड करना है किस नंबर पे है, तो आप वो टाइम बता सकते हैं, राइट। सो इस तरह से हम जनरली जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, यहाँ तक मेजरमेंट की चीजें हैं, घर में आप बच्चे को एक सिंपल सपोज दैट 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर बॉटल है, तो वो हम मेजर करना सिखा सकते हैं। तो दीज आर बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स, टाइम, मनी, मेजरमेंट, है ना, वेट करना, अलग अलग चीजों का एक वेट मशीन लेके आप बच्चे को वेट नोट करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीजों का कितना वेट है वो आप नोट डाउन करिए चेक करके। तो ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सिखा सकते हैं, राइट। मैं क्वेश्चंस यहाँ से भी लूंगा जो सर ने मुझे भेजे हुए हैं क्वेश्चंस, और अगर आप लोगों में से कोई भी पूछना चाहता है, आई थिंक दैट वुड बी मोर beneficial for all if you can ask the questions directly. Okay, so whoever want to ask the question, they can unmute yourself and ask questions. Okay.
So meanwhile, I'm going by the sequence. वन पेरेंट ने पूछा है कि हाउ टू टीच हिंदी रीडिंग, है ना। तो हिंदी रीडिंग की जब हम बात करते हैं, जो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को बहुत एक तो लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि नहीं, हिंदी इज अ थर्ड लैंग्वेज, एक ऑप्शनल लैंग्वेज है। तो बट वो हमें पहले से डिसाइड करना है कि हमें हिंदी, बच्चे को कंफ्यूजन में नहीं रखना है कि हिंदी स्टार्ट करना है या नहीं करना है ना। इफ यू फील कि हिंदी हमें एसेंशियल लैंग्वेज है, हमारे लाइफ का पार्ट है, हमें हिंदी स्टार्ट करना है, तो फिर हम क्यों ना हम अर्ली स्टेज पे ही स्टार्ट करें। बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि एक साथ दोनों लैंग्वेज हमने स्टार्ट कर दी तो बच्चा कहीं कंफ्यूज ना हो जाए या उसके लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चा बिल्कुल सीख पाएगा अगर हम राइट टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं कॉन्सेप्ट सिखाना, डेफिनेटली वी विल अचीव दैट कॉन्सेप्ट। तो जहां तक रीडिंग की बात है, तो रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स वही है। सबसे पहले हमें बच्चों को कहीं ना कहीं हिंदी में अगर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो हमें अक्षर ज्ञान पे पहले फोकस करना पड़ेगा, है ना। रिकॉग्निशन पहले देखनी पड़ेगी कि वो अक्षर को पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो जो भी हमारे से अंग, स्वर या व्यंजन है, पहले हमें उनको रीड करना, बच्चे को सिखाना है कि केवल अक्षर पे फोकस करना है, रिकॉग्निशन है, रीडिंग करना है। उसके बाद हम बहुत छोटे छोटे दो शब्द मिला के पढ़ने की बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने एक वर्ड लेटर रिकॉग्निशन बच्चे को आ गया है, तो हम क के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो दूसरे अक्षर हैं उनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कल के साथ हमने ल लगा दिया तो कल हो गया, है ना। कुछ इनिशियली हम मीनिंगफुल वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे घर, घर का पिक्चर भी है और बच्चे को देख के वो पढ़ भी रहा है। तो पिक्चर्स के साथ पिक्टोरियल और साइट रीडिंग दोनों जब एक साथ करेंगे, तो वो बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है और बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है कि वो पिक्चर देख रहा है और उसी वर्ड को पढ़ रहा है। तो ऐसे हम पहले दो शब्दों वाले, फिर उसके बाद थ्री शब्द विदाउट मात्रा, फिर हम धीरे धीरे एक एक मात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आ की मात्रा, उसमें 12 खड़ी जो जिसको हम बोलते हैं, लाइक कोई एक व्यंजन है, उस पर हम अलग अलग मात्राएं की लिखाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आ की मात्रा है, तो आप सारे अक्षर पे आ की मात्रा के बाद क्या उसका साउंड हो जाएगा। सपोज हम क पे आ की मात्रा लगा रहे हैं तो का हो गया, है ना। म पे आ की मात्रा लगा रहे हैं तो मा हो गया, तो ला पे ला हो गया। तो इस तरह से एक एक मात्रा, और उसमें हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे अक्षर एक दूसरे कलर से, मात्रा किसी हम दूसरे कलर से पुट करते हैं। छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। इवन थोड़ा सा मल्टी सेंसरी इनपुट के लिए हम बच्चे को सैंड पे लिखवा सकते हैं, हम बच्चे को वाटर कलर से लिख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मल्टी सेंसरी इनपुट हम बच्चे को दे सकते हैं जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा एक मल्टी सेंसरी इनपुट बच्चे को मिलेगा, वो उतना बेटर लर्न करेगा, उतनी जल्दी करेगा और सस्टेन भी कर पाएगा जो भी बच्चा सीख रहा है वहां पे, राइट। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांट टू पुट माय चाइल्ड इन एन आईपी स्कूल, व्हाट नीड गाइडेंस टू गो अबाउट इट। तो आईपी स्कूल, मैं समझ नहीं पा रहा कि आईपी स्कूल का उनका क्या कंसर्न है। आईपी स्कूल मीन्स या वो स्पेशल स्कूल की बात कर रहे हैं। तो अगर वो पेरेंट यहाँ हैं तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली कि उनका क्या मीनिंग है। आईपी तो हर स्कूल में बन रहा है, वेदर इट इज स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल और इंटीग्रेटेड स्कूल। आईपी तो जो भी एजुकेटर, इंक्लूसिव स्कूल में भी अगर एजुकेटर है तो वो भी आईपीस बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, right? Anyone want to ask the question directly? Yeah, if anyone has any question, then we can ask directly. Okay. ये क्वेश्चन है पेरेंट का, लाइक हाउ टू एनकरेज देम फॉर रीडिंग। तो स्पेसिफिकली रीडिंग, चाहे वो किसी भी तरह की रीडिंग है, जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो बच्चे को कोशिश यही करनी है कि जितना ज्यादा हो सके आपको बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट, इनिशियली आप ये मत सोचिए कि वो कोई स्टोरी बुक आपके साथ रीड करेगा बैठ के। आपको बस एक्सपोजर देना है बच्चे के सामने, बहुत सारी कलरफुल बुक्स जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हों, ऐसी बुक्स बच्चे के साथ आप शेयर करें। तो थोड़ा सा एटलीस्ट वो पेजेस को टर्न कर रहा है ना, सो ही इज गेटिंग द इंटरेस्ट इन दैट थिंग।
So that you have to target. एक बार जब बच्चा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, and then it depends on the रीडिंग स्किल ऑफ द चाइल्ड कि वो किस लेवल पे है. सपोज दैट अगर बच्चा का बेसिक फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बच्चे को है, अगर वो सिंपल वर्ड्स रीड कर रहा है, वेदर इट इज सीवीसी वर्ड्स, सिंपल ब्लैंड्स, है ना, डिफ्थॉर्म्स, अगर वो वर्ड्स रीड कर रहा है तो उनको हम ऐसी स्टोरीज हमें देनी है जिसमें टेक्स्ट कम हो, पिक्चर्स ज्यादा हो. सो दैट वी हैव टू टारगेट, है ना. उसमें कुछ बहुत सारी बुक्स हैं जो काफी हेल्प करती हैं, और ऐसी बुक्स ही हमें ज्यादा बच्चे को देनी है जिसमें जितना ज्यादा पिक्टोरियल फीडबैक होगा, बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी लेगा, बच्चा देख सकता है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो मीनिंगफुली पढ़ेगा, राइट. तो ये कहीं ना कहीं उस बच्चे को हेल्प करेगा. एंड एक बार लेवल जरूर चेक करना पड़ेगा. तो उसमें कुछ बुक्स हैं जैसे फिट्जरॉय रीडिंग सीरीज बुक्स हैं, वो बुक्स काफी अच्छी हैं. कम्युनिकेट इन इंग्लिश करके एक बुक है, सागर रत्ना पब्लिकेशन का एक कवर है, आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस बुक. ग्रेड वाइज इन लोगों ने बुक्स दी हुई हैं, सीसी एडिशन है लाइक दिस, कम्युनिकेट इन इंग्लिश. सो दिस इज अ वेरी गुड बुक. इसमें क्या है, टेक्स्ट कम है और बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं, वर्कशीट्स बहुत अच्छी हैं. तो ये बुक आप लोग यूज कर सकते हैं. बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा, राइट. शिवानी लोहिया जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे Yeah, हैं. yes sir. Yes sir. Good evening sir. Okay, I have a question. मेरा जो बेटा है, like Okay. मैंने जब last year से उसको खुद पढ़ाना शुरू किया, because of the lockdown I didn't have any access to any therapies or special educator. He Right. has picked up English, Hindi, mathematics quite well. मतलब हिंदी में जैसे उसको सारी मात्राएं बहुत अच्छे से आती हैं. He can read, he can write. Okay. Similarly for English, he is through with all the phonics. He can read, he can write. और अब ये होता है कि जैसे अगर हम मूवी देख रहे हैं तो वो सबटाइटल साथ साथ पढ़ता जाता है. Great. अब इशू क्या, इवन इन मैथमेटिक्स लाइक प्लस माइनस की मैं बात करूं तो वर्बली भी ही कैन आंसर एनी क्वेश्चन इफ आई आस्क हिम, तो उसको इतना हो गया. अब प्रॉब्लम दो आ रही हैं. एक तो पहला प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ कॉम्प्रिहेंशन. जैसे Right. कि आपने कुछ सेंटेंस रीड किया, अब आपने रीड कर दिया बट आपने समझा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आया कि मैं रीड क्या कर रहा हूँ. तो इट्स प्लेन रीडिंग. अगर मैं एक स्टोरी Correct. उसको जैसे सपोजिंगली थर्स्टी क्रो, मैंने उसको यूट्यूब पे भी दिखा दिया, एनिमेशन में 3-4 बार दिखाया, फिर हमने वो ड्रॉ भी किया, उसको मैंने समझाया भी, उससे बुलवाई भी, उसके बाद उसको बुक में भी रीड कराई. बट अगर मैं फिर भी उससे पूछूंगी ना कि प्यास किसको लगी थी, तो अब नाउ ही इज क्लूलेस. तो Right. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीड तो कर रहा है बट वो कहीं ना उसकी कॉम्प्रिहेंशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है. ही इज 7.5 ना. इसकी वजह से क्या है, हमारी अब प्रोग्रेस रुक गई है. मतलब अब रीडिंग तो हो रही है बट अगर आप समझ ही नहीं रहे हो तो फिर आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे उसको. दिस Right. इज वन इशू. एंड द सेकेंड इशू अब जो है वो मैं ये फेस कर रही हूँ. टिल 6 months back he was showing a lot of interest. I don't know what has happened suddenly. Now he doesn't want to sit. He has become clever. He has learned how to make excuses. तो अब ये हो गया है कि उसको बैठना ही नहीं है. एंड ही विल अपफ्रंट टेल मी पढ़ना नहीं है. मतलब वो देखेगा इंग्लिश की बुक है हाथ में, इंग्लिश नहीं करना है. अच्छा हिंदी कर लो, हिंदी भी नहीं करना है. अच्छा मैथ्स कर लो, मैथ्स नहीं करना है. आपको क्या करना है? मुझे सिर्फ ड्राइंग करनी है. ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन ड्राइंग. बट मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं ड्राइंग के थ्रू पढ़ाऊं. बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं because of comprehension thing and his sitting tolerance that is suddenly reduced. Okay, right. So first you have to check what are the issues. Suppose that you are saying now he is not taking interest in a study. Okay, so that you have to find out what is the reason behind it. Whether he just escaping from the study और उसको ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहीं वो बोर तो नहीं हो गया है कि जो पढ़ रहा है सेम कार्ड सेम स्टोरीज तो नहीं उसको मिल रही है. जनरली ऐसा भी होता है कि बच्चा, हमारे बच्चों को क्या है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मटेरियल चाहिए जब हम बच्चे के साथ फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली रीडिंग पे, एकेडमिक स्किल्स के ऊपर, राइट. एंड जहां तक आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, जनरली यही होता है कि बच्चा रीड तो कर रहा है बट he is not reading meaningfully, so that is comprehension. Right. So what you have to do, you have to provide the visual feedback for the each words or sentences. Suppose that if he is reading simple CVC words, so initially you start with the visuals, like suppose that cat wo read kar raha hai, then there should be the picture of cat, right. So once he is getting the visual feedback, now you can make a simple sentences with the help of visuals. Like suppose that there is a sentence,
a cat on the mat. Okay, so there should be the picture where there is a mat and cat is sitting on that. So when you are reading the text and you are getting the visual feedback always, right? So ये approach जब आप use करेंगे definitely फिर वो meaningfully पड़ेगा. Or even before starting reading, you can ask to illustrate the pictures. Okay, now you can ask the child what is happening in the picture. Okay, what can you see in the picture? Who is sitting on the mat? Okay, now suppose that if he answer cat is sitting on the mat. Okay, how is the cat? Is it a big, small, fat? तो ये आप उससे questions पूछ सकते हैं. तो जितना ज्यादा आप टेक्स्ट को विजुअल्स के साथ ऐड करेंगे, है ना, और बहुत सिंपल सिंपल पहले सेंटेंसेस आप स्टार्ट करिए, लाइक सिंपल अ बिग कप. तो एक बिग कप का आपने पिक्चर बना दिया एंड आप उसे मैचिंग करने के लिए भी बोल रहे हैं. एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, सिंपल सिंपल फ्रेजेस आपने लिख दिए, लाइक अ बिग कप, है ना, अ फैट कैट, अ लॉन्ग शर्ट, और वहां पर आपने पिक्चर्स बना दिए. तो बच्चा पढ़ेगा एंड देन वो करेक्ट पिक्चर से उसको मैच करेगा. तो इस टाइप की एक्टिविटीज जहां पर बच्चा जो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसको उसे विजुअल्स के साथ, पिक्चर्स के साथ जब हम एसोसिएट करेंगे, देन उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक विजुअल इमेज बनेगा, है ना. उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. इसमें आपको एक बुक बहुत हेल्प करेगी जो मैं अभी बता रहा था, फिट्जरॉय रीडिंग सीरीज की बुक है, फिट्जरॉय, राइट. Okay, can you spell it, sir? Fitzroy? हाँ, फिट्जरॉय है, एक फिट्जरॉय रीडिंग सीरीज है, आप अमेजोन पे भी अवेलेबल है. तो उनका जो लेवल 1 का बुक है, दैट इज बेस्ड ऑन द सीवीसी वर्ड्स, है ना. उसमें आप सिंपल, जैसे उन्होंने एक डॉग की स्टोरी है और डॉग, तो बहुत सिंपल सिंपल फ्रेजेस हैं, एक पेज पे केवल एक ही सेंटेंस है और पिक्चर्स बहुत सारी हैं जो बच्चे को फीडबैक देगा. तो कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज हेल्प कर सकती है. इसके अलावा आपको रीडिंग से पहले पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है. एक कोई भी सीनरी, कोई भी पिक्चर, सपोज दैट एक बच्चे का ही आप पिक्चर ले सकते हैं जहां पर वो कुछ कर रहा है, एंड यू जस्ट आस्क हिम व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पिक्चर, या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर. सपोज दैट एक कोई एक सीनरी है जहां पर एक पार्क का सीन है जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक पॉन्ड है, कुछ एक ट्रीज हैं, एक हाउस है ट्री के, देन यू कैन just ask some questions based on that picture, like who is playing with the ball, who is reading newspaper. Suppose that एक वहां पर grandparents newspaper पढ़ रहे हैं, right, and who is flying a kite. तो वो जो पिक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप बच्चे से पूछ सकते हैं. तो आपको जो फोकस करना है वो कॉम्प्रिहेंशन में पहले पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करिए, देन स्टार्ट विद द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन की जो वर्ड बच्चा रीड कर रहा है उसकी विजुअल इमेज भी बच्चे के माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एसोसिएशन आपको करना है. देन सिंपल फ्रेजेस और कुछ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप रीड करिए. सपोज दैट आप उसी की ही एक स्क्रैप बुक बना लीजिए बच्चे की ही, ठीक है, अपना जिसमें वो डेली एक्टिविटीज कर रहा है, या आपने एक स्क्रैप बुक बना लिया जिसमें एक बच्चे के बारे में ही आपने एक स्क्रैप बुक बना दिया, लाइक दिस इज ऑल अबाउट मी. उसमें आप बच्चे की पिक्चर्स लगा दी और बच्चा रीड कर रहा है, ओके दिस इज मी, आई एम, सपोज व्हाट इज द नेम ऑफ योर चाइल्ड, सर्वज्ञ. सर्वज्ञ. सो ओके, आई एम सर्वज्ञ, सो देयर इज अ पिक्चर ऑफ सर्वज्ञ, है ना. नाउ दिस इज माय फैमिली, जहां पर आपकी पूरी फैमिली है, तो वो मीनिंगफुली बता रहा है, लाइक आई एम सपोज दैट 8 इयर्स ओल्ड, तो एक 8 नंबर बना हुआ है, केक बना हुआ है, तो वो बच्चा देख रहा है और वो अपने बारे में बता रहा है. तो इस टाइप की स्टोरी छोटी छोटी स्क्रैप बुक रीडिंग की आप बना सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्पेसिफिकली. Okay. And sir, what about the sitting tolerance thing? अब जैसे ये चीज मैं कर तभी सकती हूँ अगर वो बैठ रहा है. Now he doesn't want to sit somehow. आप अगर इस तरह की थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीजें बच्चे को चेंज देते रहेंगे तो आई थिंक वो, आप बोल रहे हैं पहले बैठता था, तो ऐसा नहीं है कि उसका सिटिंग टॉलरेंस नहीं है. आई थिंक उसने इंटरेस्ट लूज किया है, तो उस पर हमें दोबारा थोड़ा एक्टिविटी बेस करना है. आपको क्या करना है, टेस्टिंग की एक्टिविटीज कर दीजिए. सपोज दैट आपने बच्चे को 3 सेंटेंसेस एक पेपर पे लिख के दे दिए, अ फैट कैट, अ बिग ट्री, ओके, टी इज इन द कप, और उसी का पिक्चर आप स्टिकर्स टाइप में पिक्चर्स बना के अलग एक आप दे दीजिए और बोलिए आप सेंटेंस रीड करो और जो भी सेंटेंस से रिलेटेड एसोसिएटेड पिक्चर है उसको आप पेस्ट कर दो. तो बच्चा पेस्टिंग कर रहा है, तो इट्स नॉट ओनली रीडिंग, बच्चा पेस्टिंग भी कर रहा है, हो सकता है वो उसके साथ इंटरेस्ट ले बच्चा. तो जब आप एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करेंगे रीडिंग के साथ, आप कभी कभी क्या करिए, केवल पिक्चर है, सेंटेंस रीड नहीं करना है, आप सेंटेंस वर्ड, सिंपल वर्ड्स के छोटे छोटे स्टिकर दे दीजिए और आस्क हिम टू अरेंज इन अ सीक्वेंस ऑर्डर. सपोज दैट देयर इज अ हाउस, तो आप एक हाउस का पिक्चर है, आप बोल दिस इज अ हाउस,
तो दिस इज अ हाउस, ये 5 वर्ड्स उसको अलग अलग दे दीजिए, देन यू जस्ट आस्क हिम टू पेस्ट अंडर द हाउस वर्ड्स इन अ सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इस टाइप की जब एक्टिविटीज आप करेंगे, कभी कभी आप व्हाइट बोर्ड यूज करिए, है ना, व्हाइट बोर्ड आप लिख दीजिए, उससे बच्चा रीड कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, जितना ज्यादा एक्टिविटीज में आपके वेरिएशंस होंगे, जितना ज्यादा आपका जो कहते हैं ना नया कंटेंट रहेगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव होगी, थोड़ा पिक्चर्स अच्छी होंगी, विजुअल्स अच्छे होंगे, डेफिनेटली वो इंटरेस्ट लेगा। एंड इफ इट बिहेवियर इशू, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिहेवियर इशू है, तो थोड़ा सा आपको उसमें एक उसके साथ कहते हैं ना हमें एक कॉन्टेक्ट भी साइन करना है कि नहीं, सब आप पहले ही बता दो कि वी आर गोइंग टू रीड दीज 2 वर्कशीट्स, या हम इतना काम करने वाले हैं, that you have to sit properly on a tabletop and then you have to finish your task. So task completion is a one thing, आपको टास्क कंप्लीशन पे फोकस करना है। एंड घर में कहीं भी इधर उधर बिठा के मत कराइए, मेक अ स्पेसिफिक प्लेस जहां पर बच्चा वहीं बैठ के, सब अगर आप डाइनिंग टेबल यूज कर रहे हैं तो वहीं बैठ के पढ़ेगा, या उनकी प्रॉपर टेबल चेयर अलग से है। मेक श्योर कि व्हेन यू आर डूइंग सम एकेडमिक एक्टिविटीज पे कॉपी वर्क, देन वो आप वहीं पे बिठा के बच्चे को करा रहे हैं, सो दैट ही गेट द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टू सिट फॉर अ रिक्वायर्ड टाइम एंड वी हैव टू फिनिश द एक्टिविटी। ओके, सो दिस इनपुट आप बच्चे को बार बार फीडबैक देते रहिए कि वी हैव टू फिनिश दिस, देन यू कैन गो। एंड उसको छोड़ भी दीजिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक दीजिए, जरूरी नहीं है कि बच्चा बैठ रहा है तो आप उसे हाफ एन आवर बिठा के रखेंगे। एवरी 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी ब्रेक which he like, कोई भी सेंसरी ब्रेक हो सकता है, that you can provide. I hope that this will help. Okay sir, thank you sir. Actually she want to ask question. yeah okay sir, thank you राइट। हाँ जी, मेरा ना बेटा 4 इयर्स का है। उसका इशू ये है कि उससे कोई पिक्चर बुक दिखाओ तो वो ना जानता सब कुछ है कि बच्चा क्या कर रहा है, गर्ल क्या कर रही है, बट वो आंसर नहीं देता। उसको बहुत फोर्स करता है, बताओ बताओ बताओ, फिर जाके वो आंसर देता है कि खेल रहा है, बस खत्म। मतलब शॉर्टकट में आंसर देगा, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी। मतलब वो आंसर देने को तैयार ही नहीं जो पता है उसे, बहुत फोर्स करना पड़ता है आंसर। उनका थोड़ा सा जनरली लैंग्वेज का इशू है क्या? वो मतलब बोलना नहीं चाहते हैं या उनका लैंग्वेज भी उतना क्लियर नहीं है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब इजी 3 वर्ड्स तक सेंटेंस है, पता है क्या बोलना है, लेकिन आंसर देने में मतलब बहुत फोर्स करना पड़ता है, आंसर दो तो दे दे। आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको जनरली हमेशा बुलवाने पे फोकस, देखिए फोर्सफुली हम बच्चे को नहीं बुलवा सकते हैं, या तो कई चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, प्रॉपर स्पीच थेरेपी की बात हो, जितना हम फोर्स करेंगे हम बच्चे को कहीं ना कहीं कहते हैं ना रोबोट बना देते हैं, कि वो बच्चा बस इनिशियल साउंड, हमारे साथ बहुत सारा यही चैलेंज आता है, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी पिक्चर देख के केवल इनिशियल साउंड बोल रहा है, बस वो आगे बोलता ही नहीं है। तो फोर्स करके बुलवाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, पिक्चर देख के आप उसे ऑप्शन दे दीजिए। ओके, अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप सपोज दैट एक पिक्चर में बच्चा खेल रहा है, ओके, उसे आप 3 ऑप्शंस दे दो, प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग। ओके, आप पिक्चर में पूछो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, सपोज दैट इफ ही आंसर इज प्लेइंग, ठीक है, तो वो आंसर बोल रहा है, दैट इज फाइन, आप उसे सर्कल करने के लिए भी बोलिए, ओके प्लेइंग का लिखा है, इफ ही इज रीडिंग तो आप सर्कल करने के लिए दे सकते हैं। रीडिंग वगैरह सब कर लेता है, अंडरस्टैंडिंग भी है इतनी इजी सेंटेंसेस की, तो सर्कल कराइए, करेक्ट वर्ड, जैसे पेस्टिंग का मैंने बोला, पेस्ट करिए, ऐसा एक्टिविटी बेस्ड रखिए। अगर मैं ऐसे कहूंगी नहीं बताओ, फिर तो बता देगा कि ऐसा करना है, मतलब बोलना पड़ेगा, करो, बताओ बताओ बताओ, पता है आंसर क्या है, लेकिन विलिंग नहीं है कि हर बार आंसर दे, कभी देना है कभी नहीं है। विलिंग बच्चे टाइम भी लेते हैं, हमारा क्या होता है, हम थोड़ा सा इम्पेशेंस हो जाते हैं, यू हैव टू वेट फॉर सेकंड्स, आपको एटलीस्ट 30 सेकंड वेट करना है ना, और we are not supposed to keep on asking, suppose that जो भी बच्चे का नाम है, ओके बताओ जल्दी से, suppose that सैम बच्चे का नाम है, सैम फटाफट बताओ क्या, what is happening, सैम बोलो, so this will not work. When you ask a simple question, okay Sam, look the picture, you have to just check whether the child is looking at the picture or not. Okay, if he is looking at the picture और आपको पता चल गया कि इसने देख लिया है, then you just ask a question and wait for at least 30 seconds. If he doesn't respond, then you can give him prompt. Okay, now you can just start the initial sound of the answer. तो वो क्लू दे सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट भी करना है। कभी कभी बच्चे, या आप क्या करिए, केवल पॉइंट करके छोड़ दीजिए, और यू जस्ट गिव हिम गेस्चर, ओके मैं पॉइंट कर रही हूँ, आप बताओ क्या हो रहा है इस पिक्चर में। तो कभी कभी ये टेक्निक भी वर्क करती है ना। क्या सपोज दैट हम 2 पिक्चर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और थर्ड पे जाके मैं पॉइंट करके और मैंने पॉज ले लिया, मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चा उसको आंसर करे। तो जनरली ऐसा होता है,
कि अगर दो पिक्चर्स आपने सपोज दैट एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर, थर्ड में अगर आपने पॉइंट करके फिंगर रख के छोड़ दिया, देन ये बहुत कॉमन है कि बच्चा उसको फिर बोलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि उसको चांस देना है बोलने का, थोड़ा टाइम देना है, और अगर टाइम नहीं, बच्चा टाइम लेने के बाद भी नहीं बोल रहा है, तो थोड़ा सा ये अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें चेक करना है कि वो कोई वर्ड को सर्कल करके बता दे, है ना, कोई करेक्ट वर्ड पेस्ट करके बता दे, तो ये हम चेक कर सकते हैं बच्चे के साथ। ओके। और एक और इशू है कि जैसे कई आंसर्स हमें देता है जो मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें है, लेकिन कोई अननोन बंदा पूछता है तो उसको आंसर नहीं देगा, थोड़ा अवॉइड करेगा, और कहाँ जा रहे हो नहीं बताएगा, कहाँ जा रहे हो नहीं बताएगा, हम पूछेंगे बताएगा। ऐसा भी है कि हम जो पूछेंगे वो आंसर देगा, दूसरा कोई पूछेगा तो सोचेगा कि आंसर देना नहीं देना, मतलब अवॉइड देखिए करेगा। ये तो बहुत कॉमन है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो नॉन जो पर्सन्स हैं उनको ही रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, या पर्टिकुलर थेरेपिस्ट के साथ अपने रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, पेरेंट के साथ रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन जब थर्ड पर्सन हम कहीं असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहां बच्चे ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये नया प्लेस जहाँ पर भी है, नए लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हमेशा थोड़ा बहुत इशू रहता है। बट अगर आप पहले से बच्चे को प्रिपेयर करें, अगर उसी चीज के लिए रेडी करना है, तो आपको फिर ये चीजें हमें रेगुलरली करनी है ना, रेगुलरली हमें कुछ लोगों के साथ पहले से प्लान करके ये चीज हमें बच्चे को ट्रेन करना है कि हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर करना है। एक छोटी छोटी स्टोरीज आप बना सकते हैं, सोशल स्टोरीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर दिस कॉन्सेप्ट्स। आप उसमें पहले से बच्चे को प्रिपेयर करिए कि सपोज दैट वी आर गोइंग फॉर सपोज दैट यू आर गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस, आपने बता दिया कि हम आज यहाँ जाने वाले हैं पार्टी में, तो वहां आप उस बच्चे को बताइए कि वहां कौन कौन मिलेगा, आपका फ्रेंड मिलेंगे, उनके मम्मा पापा मिलेंगे। अब फिर आपको बोलना है इफ अंकल आस्क यू व्हाट इज योर नेम देन यू हैव टू आंसर। तो बच्चे को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके ले जाएंगे, थोड़ा सा फीडबैक देके लेके प्रिपेयर करके लेके जाएंगे बच्चे को, तो काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चे के लिए। अच्छा, मतलब ये और ये थोड़ा सा रेगुलर चेंज करना इज पड़ेगा। ऑलवेज, चेंज इज ऑलवेज और न्यू थिंग इज ऑलवेज डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर आवर चाइल्ड, राइट। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आई थिंक चंदन कुमार जी काफी टाइम से हैंड रेज किया है। चंदन जी, राजीव जी, इफ दे वांट टू आस्क क्वेश्चन। हेलो सर। या प्लीज। सर मेरा बेटा सर 8 इयर्स का है सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जब मैंने उसे वेयर वाले क्वेश्चंस कराए थे कि वेयर का आंसर करना, तो वो कर लेता है, लेकिन सर अब जब मैं उसे हु सिखा रही हूँ कि हु इज देयर, तो सर वो वेयर के साथ मिक्सिंग कर दे रहा है। जैसे कि कैट चेयर पर है तो हु इज देयर तो बोलेगा कैट इज ऑन द चेयर। तो सर ये हु वाला कॉन्सेप्ट सर किस तरह से एक्सप्लेन? सी इसमें ना कॉन्सेप्ट्स में जब भी हम लोग क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट दे रहे हैं लाइक हु, व्हेन, वेयर, तो इसमें हमें एक तो इनिशियली जंबल नहीं करने हैं, दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेके नहीं चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट लेके जाना है, और जितना ज्यादा हो आप प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट करिए। लाइक ओके सर। सपोज दैट एक सिंपल सा है, बच्चे के साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, सपोज दैट पापा रूम में है बच्चे के, ठीक है, तो और फिर आप उससे पूछेंगे हु इज इन द रूम, तो आंसर करेगा पापा। तो हु के क्वेश्चन ही पहले आप उन्हें प्रैक्टिकल जो इलस्ट्रेशंस हैं, जितनी ज्यादा मतलब बच्चा प्रैक्टिकली उसको जितना ज्यादा जनरलाइज करेगा कॉन्सेप्ट को, वो हेल्प करेगा। एंड जैसे ही तो दूसरा कॉन्सेप्ट सपोज वेयर हमें स्टार्ट करना है, तो बच्चे को डिफरेंट ये बाद में, जब पहले आप वेयर को सेपरेटली इंट्रोड्यूस करिए, फिर आप वहां कंपैरिजन सिखा सकते हैं। फिर एक ही क्वेश्चन में आप दो क्वेश्चन, एक ही चीज से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज दैट हु इज इन द रूम, तो बच्चे ने आंसर कर दिया पापा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेयर इज पापा इन द रूम, तो बच्चे को उस टाइम डिस्क्रिमिनेट करने में इजी होगा। तो पहले बच्चे को सेपरेटली वो कॉन्सेप्ट सिखाइए। एक बार जब सेपरेट सारे कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, है ना, जब आप कॉमन सर्च भी करेंगे क्वेश्चंस, बच्चे की क्वेश्चनिंग इंप्रूव करने के लिए वर्कशीट्स, तो वो आपको बहुत सारी वर्कशीट मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, पीडीएफ है मेरे पास, जहां सारा आप मेरा मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड पिक्चर्स के साथ एक पीडीएफ है दैट आई कैन शेयर विद यू। ओके सर। एक सर ये बता देंगे क्या सर, इनिशियल स्टेज में जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है वो सर कैसे स्टार्ट करते हैं कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट? देखिए डिवीजन पहले मतलब वही है, देखिए डिवीजन सब बच्चे के, आपको पहले देखना है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मैथ मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्लियर है। यस सर। डिवीजन को पहले आपको क्या करना है, डिवीजन मींस बेसिकली पार्ट्स। तो पहले बच्चे को हमें पार्ट सिखाना है ना, हमें ग्रुपिंग सिखानी है कि सपोज दैट ये
10 बीट्स आपके पास हैं। इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक जी है। सर। ये 10 बीट्स हैं, इनको आप ग्रुपिंग, आप बोल दो 2-2 के ग्रुप्स बना दो। अच्छा 2 बीट्स 2-2 के, सपोज 10 में 5 ग्रुप हो गए, तो पहले आप केवल ग्रुपिंग पे फोकस करिए। ओके, अब आप 3 के ग्रुप्स बनाइए, 5 के ग्रुप बनाइए। तो ये इनिशियल स्टेज में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज इस टाइप से करनी है, अलग अलग ग्रुपिंग बच्चा जब कर लेता है, देन फिर हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम रोज लर्निंग के थ्रू करते हैं कि टेबल लर्न करके, है ना। यस सर। 10 है, सपोज 2 की टेबल में 10 कब आता है वो डिवाइड कर दिया। 5 सर। लेकिन वही आपको ग्रुप के जब वो हमने जो ग्रुपिंग सिखाई है उसके साथ जब हम एसोसिएट कर देंगे तो बच्चा मीनिंगफुली भी कॉन्सेप्ट समझेगा कि डिवीजन का जी मतलब क्या हाँ होता जी है। हाँ हमने जी हाँ जी। आपको एक ग्रुप्स बना दिए, उनको हमने डिवाइड कर दिया। सपोज दैट 5 एप्पल्स 6 एप्पल्स थे और हमने 6 एप्पल्स को 3 लोगों में, सपोज दैट मैं 2 मैंने ले लिए, 2 मम्मा ने ले लिए, 2 पापा ने ले लिए। तो अगर हम 2-2 के ग्रुप बना रहे हैं तो हाउ मेनी ग्रुप? हम 3 लोगों के 2-2 के ग्रुप बना सकते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट्स बच्चे को सिखाएंगे, एसोसिएट करेंगे, तो वो मीनिंगफुली भी डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, चंदन कुमार सर। जी, गुड इवनिंग। हेलो प्लीज। यस सर, आई एम सर, हियरिंग, प्लीज। मेरा एक 3 साल का लड़का है सर, उसको स्पीच से रिलेटेड डिले स्पीच है सर, और बाकी बाकी सब एक्टिविटी है, सुनना हो समझना हो सब चीज़ है, लेकिन वो स्पीच जो होना चाहिए 3 साल में वो उसको नहीं है। राइट, बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी की बैक साइड से। चिरंजीव के यहाँ से काफी डिस्टरबेंस है, तो हाँ जी। ओके, तो स्पीच का जहां तक बात है, आपने बताया कि 3 ईयर बच्चे का एज है। अभी क्या लेवल है स्पीच हाँ में सर, बच्चे का? जैसे पापा दादा मामा ये सब मन हुआ, कोई या कोई बगल वाला बच्चा बोला तो उस पर रिप्लाई दिया पापा, लेकिन हम जैसे बोले बाबू बोलो पापा मामा दादा पापा, इस टाइप का नहीं, जब उसका मन हुआ तब बोलेगा, मतलब वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, जैसे पापा चल या खाना दो, इस टाइप का 2 वर्ड्स नहीं, वो भी उसका मन होने पर, या कहीं सुना कोई बच्चा बोल रहा है तो उसके रिप्लाई में वो, लेकिन जो राइट, होना देखिए चाहिए सर, अभी जैसे। स्पीच में क्या है ना, बेसिकली जनरली स्पीच थेरेपिस्ट आपको ज्यादा गाइड करेंगे इस बारे में। लेकिन जितना मेरी समझ है जो स्पीच थेरेपी के मामले में, वो ये है कि पहले आपको बच्चे के लेवल के हिसाब से जाना है। सपोज दैट आपको देखना है कि बच्चे का रिसेप्टिव लेवल कैसा है, वो जनरल रेस्पॉन्ड करता है कि नहीं, उसको सिंपल वो सब इंस्ट्रक्शंस सब कमांड्स फॉलोइंग आता है कि वो नहीं। इसके बाद अगर ये सब आता है तो आपको देखना है कि बच्चे की रिकॉग्निशन कैसी है, लाइक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस है क्या बच्चे को, बेसिक कलर शेप्स, है ना, नंबर्स, बेसिक हाउस होल्ड थिंग्स, वो सब चीजें पहचानते हैं। नहीं सर, ये सब चीज़ तो अभी नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, मेन है तो कि वो यही चीज है, बहुत देखिए ज़्यादा, यहीं पर, बहुत ज़्यादा यहीं पर हमें, चंचल बहुत यहीं है, पर हमें एक्टिव बहुत ज़्यादा एजुकेटर है। और स्पीच, राइट, यहीं पर हमें एक एजुकेटर और स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, यहाँ पर टीम वर्क की जरूरत है। सपोज दैट अगर एजुकेटर बच्चे की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और होता क्या है ना, जनरली हम स्पीच में बच्चे को रिकॉग्निशन अभी है नहीं, बच्चा हाउस होल्ड थिंग पहचानता नहीं है, और हम बहुत ज्यादा बच्चे को वर्बल इमिटेशन या वर्बल लैंग्वेज पे हम फोकस करते हैं, वर्बल स्किल्स पे फोकस करते हैं, कि जहां पर हम बच्चे को पूछ रहे होते हैं, ओके से दिस इज एप्पल, बोलो कार। लेकिन भाई बच्चे को जब पता ही नहीं है कि ये कार है, तो वो बच्चा बोलेगा कैसे? तो सबसे पहला तो ये है कि बच्चे का एक्सप्रेसिव से पहले रिसेप्टिव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बच्चे का उतना ही जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। तो पहले तो हम रिसेप्टिव ये पे फोकस करना है, रिसेप्टिव आइडेंटिफिकेशन पे हमें बहुत फोकस करना है, जितना ज्यादा हो उनकी रिकॉग्निशन पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, इन पे काम करिए। लैंग्वेज मीनिंगफुली हमें फोकस करना है। सपोज एक स्क्रैप बुक बना लीजिए जिसमें सारे फैमिली के मेंबर्स के पिक्चर्स हैं, है ना, सारे कॉमन घर की जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं, बच्चे की जो बिलोंगिंगनेस की चीजें हैं, वो सारी स्क्रैप बुक में पेस्ट की हुई हैं पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स आप बच्चे को पॉइंट करवा रहे हैं, है ना, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, लाइक व्हाट इज दिस। अगर वो पूरा वर्ड भी नहीं बोलते हैं, इनिशियल साउंड भी बोल पा रहे हैं, तो वो देखना है। उससे पहले स्पीच में बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पीच थेरेपिस्ट आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे। बच्चे की जो वो बेसिक ऑलरेडी लिस्ट हैं, जैसे बच्चे का जो हमारे सब, बच्चे का ब्लोइंग आ गया है कि नहीं आ गया है, च्युइंग कर लेता है कि नहीं कर लेता है, तो वो सारी चीजें भी देखना है। इमिटेशन स्किल बच्चे की साउंड में कैसी है, कौन से साउंड्स को इमिटेट कर लेता है, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, तो वो सारा एक बार बच्चे का लेवल चेक करके ही देख पता चल सकता है कि किस लेवल पे काम करने की जरूरत है।
ठीक है, तो एक्चुअल में बेटर है कि सर आप किसी अच्छे लग स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको ज्यादा गाइड करेंगे। एक्चुअल में चल रहा है सर, 2 महीने से ये स्पीच थेरेपी चल रहे हैं, तो जो प्रोग्रेस ओके। होना चाहिए वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं हमको। और अपने से थोड़ा घर सा में भी टाइम तो गाइडलाइन लेता करते। है, देखिए डिपेंड नहीं करता है, अगर आप सही जगह पर हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ऑब्वियसली, बट हाँ एक बार ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि Good हम सही evening, sir. डायरेक्शन में काम कर रहे हैं कि Good और evening, sir. Sorry to interrupt. I just uh, want to said something. Actually, अगर आप स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता. इट टेक्स टाइम. और क्या क्या एक्टिविटीज है, जैसे बच्चा ब्लो कर पाता है अगर हम उसको स्ट्रॉ दे रहे हैं, नहीं तो ऑब्वियसली मैं ये इनको सब वही चीजें बोल आप रहा हूँ, टाइम पैक फाइल लगता है यूज और कर थोड़ा सा सकते हैं. सस्पेंड यू करता कैन है। यूज पैक फाइल, जो जैसे सर ने बताया. अगर वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसको अच्छे से स्पीक अप कर रहा है, तो वो सीखेगा अभी. ये नहीं, स्टेप वाइज होगा. इट टेक्स ये सब टाइम. तो मैडम ये सब ऑलरेडी वो कर रहे हैं, जैसे बैलून फुलाना हुआ या मोमबत्ती को फूकना हुआ, या जैसे एक्सरसाइज करना कुछ भी उस टाइप का, या माला माला में मोती गूंथना हुआ, ये सब सब एक्टिविटी है। बेसिकली लेकिन लैंग्वेज से जो आपको फिर सिखाते फोकस हैं करने की जरूरत है, लैंग्वेज पे आपको फोकस करने की उसको हर जरूरत है। चीज दिखा दिखा के बुलवानी पड़ेगी ताकि वो अपना स्पीच ज्यादा वो करे. तो सर जो कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल. वही चीज है कि अच्छा, उसका मूड पे होता है, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है, ये दिक्कत हो रही है। ऐसे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हमें उनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है. वी हैव टू जस्ट Honestly, okay, फाइंड so आउट. can we move on next question, please? Any question? हेलो सर। Yeah, थैंक यू सर, please. थैंक यू। हेलो सर, दीपिका। Yeah, Deepika, please, ma'am, बोलिए। सर मेरी बेटी है ना 4 इयर्स की है, और उसको है ना, मुझे उसको रिसेप्टिव बहुत अच्छी है, उसकी फाइन मोटर बहुत अच्छी है। ओटी में जो भी एक्टिविटी उसको ग्रॉस मोटर या टेंशन से रिलेटेड कुछ भी कराते हैं ना, बहुत अच्छे से कर लेती है। बस ये है कि जो भी कोई भी एक्टिविटी जैसे साइड जंप, बैक जंप, ये सब बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन फटाफट कर देती है, बहुत देर तक इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहती। इसी वजह से मैं इसको राइटिंग नहीं करवा पा रही। 4 ईयर की है, इसको अभी राइटिंग कलरिंग कुछ नहीं आता, और मैं चाहती हूँ ये करे। देखिए तो जनरली क्या होता है ना, जैसे आपने बोला कि बच्चा बहुत क्विक है, टास्क कंप्लीशन बहुत अच्छा है, वो फटाफट जल्दी फिनिश कर देता है एक्टिविटीज को, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, उसको हमें यूज करना है उनकी उस स्किल को। लेकिन स्पेसिफिकली जो आप राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो राइटिंग के लिए मैं बोलूं तो हमें पहले चेक करना है कि बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। जैसे आपने बोला कलरिंग कर रहे हैं, तो कलरिंग कैसे कर रहे हैं, क्या वो राइटिंग में इमिटेशन अभी कर लेते हैं या नहीं। सब अगर हम बोल रहे हैं आप टॉप टू डॉट वॉच अप डाउन लाइन ड्रॉ करिए कलरिंग के में, राउंड राउंड कलरिंग करना है, तो राइटिंग में लेवल चेक करना है कभी किस लेवल पे है उनका। अगर पेंसिल होल्डिंग अच्छा है, क्रेयॉन होल्डिंग अच्छा है, तो इमिटेशन अगर वो स्क्रिबलिंग में कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज चेक करनी है। प्री राइटिंग में सिंपल देखना है क्या वो डॉट जॉइनिंग सिंपल कर लेते हैं, तो हमें सर बहुत अभी नहीं आता एक्चुअली, मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन किया है कि बिल्कुल बेसिक क्या होता है। हाँ, तो बेसिक इसमें देखिए, ये सबसे पहले तो आपको बच्चे को बहुत सारा फशी वर्क, एक कहते ना कि जितना ज्यादा हो सकता है बच्चे के साथ क्ले के साथ हैंड की एक्टिविटीज ज्यादा कराइए बच्चे को, राइट। अगर इनका फाइन मोटर अच्छा है फिर भी आप क्ले के साथ ज्यादा काम करना है ना। सिंपल से क्ले के अंदर आपने कुछ मार्बल्स डाल दिए, उनको निकालना है, तो वो एक्टिविटी ज्यादा करनी है। उसके बाद आपको प्री राइटिंग पे फोकस करना है। प्री राइटिंग में सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि जो बच्चा अभी क्रेयॉन लेके वो अपनी मर्जी से कुछ भी स्क्रिबल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इमिटेशन पे लेके आना है। आप भी एक क्रेयॉन ले लो, बच्चे को भी एक क्रेयॉन दे दो और बोलो कि चलो आपको मुझे देख के करना है, जैसे मैं स्ट्रोक बना रहा हूं वैसे ही आपको करना है। सपोज मैं टॉप टू बॉटम कर रहा हूं तो आपको भी यही करना है। अगर मैं लेफ्ट राइट ऐसे स्ट्रोक बना रहा हूं तो आपको लेफ्ट राइट करना है। ओके, एक सर्कल बना दो, उसके अंदर ओके राउंड राउंड करते हैं, तो ये हो गया इमिटेशन इन स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग करा रहे हैं, इमिटेशन के साथ करा रहे हैं। इसके बाद आप सिंपल वर्टिकल लाइन में, जिसको हम वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन में दो आपने डॉट बना दिए, उन डॉट में भी आप दो कलरफुल डॉट बना दीजिए। सपोज टॉप वाला ऊपर वाला डॉट ग्रीन बना दीजिए और नीचे रेड डॉट बना दीजिए। देन यू कैन जस्ट आस्क हिम ओके वी हैव टू कनेक्ट द डॉट ग्रीन टू रेड, और थोड़ा सा उसको प्लेफुल बनाने के लिए आप बोल सकते हैं ओके ग्रीन से गो गो, रेड से स्टॉप, तो ग्रीन से स्टार्ट करो, रेड पे स्टॉप, तो बच्चे को स्टॉप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस टाइप की सिंपल डॉट जॉइनिंग पे फोकस करना है। डॉट जॉइनिंग जब बच्चा कर लेता है फिर हम ट्रेसिंग पे फोकस करते हैं, और उसमें भी अलग अलग पैटर्न है। पहले स्टैंडिंग लाइन में डॉट जॉइनिंग, फिर वर्टिकल लाइन बोलते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में डॉट जॉइनिंग, फिर डायगोनल लाइन में डॉट जॉइनिंग, फिर हम थोड़े से कब्स के अंदर डॉट बना दिए उनको ज्वाइन करना।
ट्रेसिंग। तो आपको इनिशियली अभी जो फोकस करना है, जो आप लेवल बता रहे हैं, कभी बहुत अर्ली स्टेज पर हैं, बिल्कुल नहीं आता है यस स्क्रिबलिंग करना, तो आप अभी इमिटेशन स्क्रिबलिंग पे, कलरिंग विद इन द बाउंड्रीज और डॉट जॉइनिंग और ट्रेसिंग पे फोकस करिए, राइट? सर मैंने जो अभी शुरुआत की हुई है ना, वो एक तो मेजेस करवा रही हूँ मैं इसको। मेजेस थोड़ा मेजेस सा हाई लेवल है, मे बी अगर बहुत अर्ली स्टेज में अगर हमें काम करना है तो मेजेस थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए कि वो वही डॉट। सर, इसको क्या है, टर्न तो पता चल गया, टर्न कहाँ से होना है ना। मैं बहुत सारे टर्न लेती हूँ उसमें, लेफ्ट राइट मेजेस में लेफ्ट। ना बीच बीच में थोड़े डॉट डाल दीजिए, मेजेस के अंदर भी हाँ, आपको प्रॉपर डॉट्स को कनेक्ट करना है, थोड़ा लेकिन कलरफुल सर इसको है ना अभी दीजिए। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं आया एक्चुअली। हाँ हाँ, बाउंड्री आ जाएगा, थोड़ा सा थिक बाउंड्रीज बना देना है। कभी कभी बाउंड्री के ऊपर कुछ पेस्ट कर दीजिए पेपर, कभी कुछ सब राजमा पेस्ट कर दिया, कभी मैच स्टिक पेस्ट कर दिया, तो एक बार जो क्लियर उसको दिखे बच्चे को। और थोड़ा सा ऑब्स्टिकल भी बाउंड्री के रूप में, जब अच्छा, मैच स्टिक वगैरह पेस्ट करते हैं तो अगर सर्कल है तो सर्कल के ऊपर आपने बाउंड्री के ऊपर राजमा पेस्ट कर दो, और फिर आप उसके अंदर अच्छा। कलरिंग करने के लिए बोलो, तो कलरिंग जा ही नहीं पाएगा। कुछ कटआउट्स बहुत हेल्प करते हैं, एक गत्ता ले लिया, उसके अंदर सर्कल का कटआउट लेके फिर आप कलरिंग करवा रहे हैं स्टेंसिल टाइप में, तो वो एररलेस हाँ कलरिंग हो गया कि बच्चा गलती करने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो जो भी कलर करेगा अच्छा ही दिखेगा, तो उससे बच्चा मोटिवेट होता है। सर, ये जो ट्रेसिंग है ना, इसके मैंने वुडन के ला रखे हैं, तो वुडन की पेंसिल है, तो हाँ, स्टैंडिंग वुडन में वो भी स्वीपिंग हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता वो है। मैं आप इसको थोड़ा सा, करवा रही हूँ। हाँ, वो चीजें आप वाटर कलर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे सपोज जो पेंसिल में कम इंटरेस्ट है, तो बच्चे को कभी कभी दो डॉट जॉइन ट्रेसिंग या मेजर्स एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो फिंगर पे वाटर कलर लगा के फिर वाटर कलर से करने दीजिए, तो वो उसमें सर भी मतलब बच्चा जो आप वो इंटरेस्ट। डॉट जॉइनिंग वाली बोल रहे हो, स्टैंडिंग लाइन जो डॉट जॉइनिंग वाली है, तो वो मैं वाटर कलर से करवाऊं पहले इससे कि यस यस, क्रेयॉन से? हाँ, सबका जरूरी नहीं है, सारा एक साथ लेके चल सकते हैं, मल्टी सेंसरी हमें टीचिंग रखनी है। आप वाटर कलर से भी कराइए, क्रेयॉन से भी। क्रेयॉन को थोड़ा अवॉइड करिए, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। क्रेयॉन का मतलब उन्हें लगता है कलरिंग। स्पेसिफिकली जब आप डॉट जॉइनिंग वगैरह करा रहे हैं ना, तो या तो फिंगर ट्रेसिंग के थ्रू, वाटर कलर के थ्रू, या पेंसिल ही दीजिए, सो दैट वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ हमें अच्छा, पेंसिल से डॉट जॉइनिंग। कलरिंग मिलता है तो बच्चे को लगता है कि हम कलर करना है कुछ भी, तो वो डॉट जॉइनिंग भी हाँ। करा रहे हैं तो डॉट जॉइनिंग भी कहीं भी स्ट्रोक बनाना शुरू कर देते हैं, सर, इसलिए आपके जो crayons बातों को से मुझे अवॉइड करें। पता लगा है कि एक तो कि इसको है ना इमिटेशन में राइटिंग सिखानी है, एक्चुअली इमिटेशन बिल्कुल से बिल्कुल कलरिंग सिखानी है, तो शायद इसीलिए वो डॉट जॉइनिंग कर पाएगी, क्योंकि मैं yes. इमिटेशन करूंगी कि श्रव्या इस डॉट को इस डॉट से जोड़ेंगे, तो फिर वो भी करेगी, हाँ, और इमिटेशन उसमें से थोड़ा सा आएगा। वही, उसको थोड़ा फन करने के लिए आप ग्रीन टू रेड, तो आप थोड़ा बोलिए ग्रीन हाँ से हाँ, ओके गो 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 स्टॉप, रेड पे आपने स्टॉप बोल दिया, बच्चा भी स्टॉप कर रहा है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, एक थैंक क्वेश्चन यू जो मैं सर। एड्रेस करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी पूछा है कि इज स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड टू ओनली एकेडमिक्स? तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर केवल एकेडमिक्स पे काम कर रहा है। जो एकेडमिक की प्री रिक्वेस्ट है, कॉग्निशन एरिया इज बेसिकली पार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर, जहां पर बच्चे की परसेप्चुअल स्किल्स हैं, चाहे वो जो भी लर्निंग इम्प्लीकेशंस होते हैं विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स की, परसेप्चुअल स्किल में चाहे वेदर इट इज विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन और मोटर परसेप्शन, इन तीनों परसेप्शन का हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है आगे एकेडमिक कॉन्सेप्ट सिखाने में। सपोज दैट बच्चे का अगर ऑडिटरी परसेप्शन अच्छा नहीं है तो स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, तो इसलिए स्पेशल एजुकेटर इन सारे कॉग्निटिव एरियाज पे काम करता है। बेसिक जो एकेडमिक एरिया है, जो प्री रीडिंग राइटिंग मैथ, इन सब पे तो काम करता ही है। एंड एक जो क्वेश्चन कॉमन और काफी लोगों ने पूछा है वो है कि एक फॉर्मल स्कूलिंग में जाने के लिए किन चीजों पे हमें ज्यादा काम करना है। तो देखिए, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा था, दैट इज अ प्रोग्राम कि क्या है उसमें बेसिकली हम किन चीजों पे काम करना है। तो एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ मेन स्ट्रीम स्कूल, या एक जनरल जब बच्चा क्लास में जाता है हम क्या सोचते हैं कि क्या उसको आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो स्किल्स की जरूरत है, तो बच्चे की सिटिंग सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा क्लासरूम में जाके बैठ रहा है एक ग्रुप क्लास में जाके। दूसरा होता है कि उसका कमांड फॉलो, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो जो भी मैं पूछ रहा हूँ क्लास में बच्चा उसको रेस्पॉन्ड करे, तो रेस्पॉन्डिंग बच्चे की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग वो हो गया। उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली स्कॉलास्टिक एरियाज की बात करूं, तो बच्ची की जो प्री एकेडमिक स्किल है, प्री एकेडमिक जो स्कूल रेडीनेस स्किल में, जैसे आपका प्री रीडिंग हो गया, प्री राइटिंग हो गया, प्री मैथ, तो ये लेवल पे आना चाहिए। जनरली क्या होता है, जितना डिले कर देते हैं, सपोज दैट हमने एजुकेशन या राइटिंग पे काम करना, बच्चे की रीडिंग पे काम करना, मैथ के कॉन्सेप्ट्स हमने 5 ईयर में जाके स्टार्ट किए, बट बच्चे की एज हो गई, जब तक हमने बच्चे को वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर पाए, बच्चे की एज 6 ईयर हो गई। 6 ईयर में बच्चा फर्स्ट क्लास में होना चाहिए या सेकंड क्लास में। हमारे यहाँ
एज के अकॉर्डिंग एडमिशंस होते हैं। तो उसका फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं स्कूल से जो प्रेशर हम एज ए पेरेंट फील करते हैं वो क्या होता है कि अब हम बच्चे को किस पे काम करें, अभी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है लेकिन मुझे स्कूल का भी सिलेबस कराना है, तो बहुत ज्यादा फिर हम बच्चे को प्रॉम्प्ट देना, हम क्या करते हैं बच्चे को हेल्प करके काम तो कराना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो स्कूल से जो होमवर्क आया है या स्कूल का जो काम है हमें वो कराना है, बट बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्लियर नहीं होते हैं। तो वो एक ये ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से कहीं ना कहीं वहां बच्चे का लॉस होता है कि बच्चा सच में रेडी नहीं था स्कूलिंग के लिए, बट वो एनी हाउ इज गोइंग टू स्कूल, बच्चा जा रहा होता है स्कूल, बट वो कहीं ना कहीं उसके लिए टॉर्चर है ना, कि जो क्लास में चल रहा है वो बच्चे के लेवल का नहीं है। ये हो सकता है कि बस हम 2-3 स्किल टारगेट कर लें कि चलो बच्चा एटलीस्ट जाके बैठ रहा है, एटलीस्ट वहां जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है उनमें पार्ट ले रहा है, बट कहीं ना कहीं एक स्कूलिंग में बच्चे का एकेडमिक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ना, तो वो एक एरिया है जहां पर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम मेनस्ट्रीम स्कूलिंग इंक्लूसिव स्कूल प्लान कर रहे हैं तो हमें बच्चे की एकेडमिक्स पे फोकस करना ही करना पड़ेगा, राइट। सो दिस आई वांट टू जस्ट टेल यू ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? We have 5 minutes more. Yeah, hi sir. This is Uttam. Yeah, please sir. Yes sir. एक्चुअली मेरा बेटा 6.5 इयर्स का है, उसका स्पीच बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तब मम्मी पापा ऐसा कुछ करके बोलता है, बट वो नाक के बराबर स्पीच है उसका। तो और उसका क्या है ना कि ऑब्सेशन हो जाता है, जैसे कुछ दिनों पहले तक करीब 1.5 साल तक वो क्या था, एक वो ताला की एंड लॉक जो होता है ताला और चाबी, उसके प्रति उसका ऑब्सेशन था। मतलब रास्ते में कहीं पे भी वो ताला अगर मिले चाबी मिले तो वहां सो जाता था वो पूरा, मतलब उसको वो ताला चाबी लेके आना और वो घर में लेके आएगा, मतलब जब सोता भी था ना तो 10-12 ताला लेके साथ में सोता था। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा था सर कि उसका मतलब हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है सर, मतलब वो एक जगह शांत होके नहीं बैठता है। और पहले हम लोग एक जगह थेरेपी कराते थे तो वहाँ थेरेपी एक्चुअली वो लोग मतलब बहुत सारे जन को वहां पे पता चला कि वो ठीक से करा नहीं रहे थे, तो बहुत सारे जन ने छोड़ दिया वो थेरेपी, तो 2 महीने का उसका गैप हो गया थेरेपी में। तो इसमें उसका और ज्यादा ये हाइपर एक्टिविटी बढ़ गया है। तो और मैं और मेरी वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, तो और दोनों ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग पूरा टाइम दे पा रहे हैं उसको, बट फिर भी ये हाइपर एक्टिविटी कम नहीं हो रहा है अभी भी, और हम लोग तो थेरेपी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत तो रहेगी, है ना। अगर हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है तो उसमें देखना पड़ेगा कि हाइपर एक्टिविटी का मेन रीजन क्या है, क्या उनके सेंसरी इश्यूज की वजह से हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है या उनके कुछ अदर इश्यूज हैं, है ना। सपोज दैट मेनली लैंग्वेज का इशू है, उसकी वजह से बच्चा जो एक होता है बिहेवियर, एक होता है बिहेवियर होता है, एक बच्चे की सेंसरी नीड्स होती है, तो किस वजह से हाइपर एक्टिविटी है तो क्या रीजन क्या है ना, कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंसर्न का पॉइंट होती हैं, तो देखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको लेमन टर्म्स में ऐसे नहीं जनरली बता सकता, हाँ, लेकिन एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत है, उनसे कंसल्ट करना है, प्लस इनको थोड़ा सा मीनिंगफुल एक्टिविटीज में एंगेज करना है ना। जब तक हम बच्चे को एंगेज नहीं करेंगे, जब इफेक्टिव एंगेजमेंट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा कहते हैं जब उसके पास करने को कुछ नहीं है मीनिंगफुल, तो वो कुछ ना कुछ तो करता है और हमें लगता है कि वो बच्चा बैठ नहीं रहा है, इधर-उधर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है सिटिंग की, जो बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं, घर के हाउस होल्ड चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में काम होता है, उनमें उस बच्चे को इन्वॉल्व करिए और उसके साथ मीनिंगफुल चीजें कराइए। सपोज अगर आप कुछ भी ग्रोसरी लेके आए हैं, आप वेजिटेबल्स लेके आए हैं, वेजिटेबल्स को आप अपना प्रॉपर बास्केट्स के अंदर सॉर्ट करना है, आप ग्रोसरी लेके आए उनको कंटेनर्स में डालना है, छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर हेल्प लेनी है ना, घर की कॉमन चीजों में। तो बच्चे को एंगेज करिए जितना ज्यादा हो, डेली रूटीन की एक्टिविटीज में, मीनिंगफुल एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज करिए। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वो बच्चा सेटल हो रहा है। और जितना ज्यादा कर सकते हैं, आई थिंक फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत हेल्प करती हैं। आप बच्चे को सिंपल टारगेट हिटिंग की एक्टिविटीज, बच्चे को सिंपल पार्क में ले जाके उनके साथ सिंपल बॉल कैच थ्रो करना, है ना, सिंपल जैसे आजकल बास्केटबॉल की प्लास्टिक के आ जाते हैं, वो घर में आप रख सकते हैं, बॉल को बास्केट में डालना, थोड़ा सा जिसमें स्किलफुल एक्टिविटीज हो, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ स्किल भी यूज कर रहा है ना, एक ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्लेजर के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है। तो स्किलफुल एक्टिविटीज करिए। और बाकी आप किसी न किसी थोड़ा सा, जिस तरह से आप लेवल बता रहे हैं, एक प्रोफेशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो वो आप जरूर किसी अच्छे थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट करिए। बट आपको टच में रहना।
right? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Next question, Swaraj ji and Neha in hand I raised. have a question. Hi, this is Neha over here. Yeah, please. Yeah, so the question is, see, all these things are so overlapping. I mean, speech therapy, OT, and special education. So it's really confusing for parents to understand कि कौन क्या करा रहा है. For example, अभी मैं speech therapy करा रही हूँ, तो उसमें वो concepts, vocabulary build करने के लिए hot and cold, for example, और sweet and sour. So it's confusing कि ये speech therapy है या special education है. So how do we select a special educator? Or, I Right. mean, is there a demarcation like that? वेरी एप्ट क्वेश्चन. एक्चुअली यही होता है जनरली. हम क्या सोचते हैं कि स्पेशल एजुकेटर भी कुछ बीडिंग की एक्टिविटी करा रहा है ना, वो भी कुछ पैकबोर्ड की एक्टिविटी करा रहा है, ये तो ओटी में भी होता है. तो स्पेशल एजुकेशन में डिफरेंट क्या है? देखिए, मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूं. जो तीनों हमारे मेजर जो थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर. तो स्पीच थेरेपिस्ट का जो काम है वो बेसिकली जो मेजर रोल है दैट इज रिलेटेड टू द स्पीच एंड लैंग्वेज, है ना. बच्चे की सपोज स्पीच बिल्कुल नहीं है, तो वो जो हमारी स्पीच ऑर्गन्स की स्किल है, चाहे हमारी ऑर्गन प्लेसिंग है, जो हम कहते हैं ना कि ओरल मोटर की एक्टिविटीज हो गई या लैंग्वेज बिल्डिंग की एक्टिविटीज हो गई. सो बेसिकली स्पेसिफिकली दैट पर्टिकुलर स्किल्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट. ओटी जो होता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, वो जनरली बच्चे की जो सेंसरी नीड्स हैं, हैंड फंक्शन की जो मोटर स्किल्स हैं, उन पे डील करता है, सेंसरी नीड्स के साथ काम कर रहा है. तो ये मेजरली एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का काम है. एजुकेटर, सिंस आई एम ए स्पेशल एजुकेटर, तो एजुकेटर का जो रोल है वो मैं अगर आपको बता दूं, वो ये है कि बच्चे के बेसिकली कॉन्सेप्ट्स पे काम करना, है ना. अगर आप एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, आजकल थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है. पता लगे स्पीच थेरेपिस्ट भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहा है ना, बच्चे को रिसेप्टिव आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, ये चीज सिखा रहे हैं. लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा सेपरेट लेके चलें कि सपोज दैट एजुकेटर जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो सपोज दैट फ्रूट्स का पहचान है, बॉडी पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन है, नंबर, अल्फाबेट, शेप्स, कलर, तो आइडेंटिफिकेशन पे एजुकेटर काम कर रहा है. जिन चीजों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है उसको बुलवाना, है ना. सपोज दैट उनको नंबर्स आते हैं, तो नंबर्स को रिकॉग्नाइज करके नेमिंग जो वाला पार्ट है एजुकेटर भी करता है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऐसा दिखेगा कि कॉमन हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है. स्पेसिफिकली स्पीच थेरेपिस्ट केवल एक उसी चीज पे, उसका मेन टारगेट है कि कैसे भी बच्चे को हमें वर्बल करना है, लैंग्वेज पे काम करना है, वो वाला टारगेट है. एजुकेटर का टारगेट क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना. बच्चे को सपोज दैट अगर नंबर का कॉन्सेप्ट है तो सच में उसको वो कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं, वो जनरलाइज करके चेक कर रहे हैं, मीनिंगफुल काउंटिंग करके देख रहे हैं. और जहां तक जो हमारी एकेडमिक स्किल्स हो गई, स्पेसिफिकली 3R, जिनको हम रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक बोलते हैं, तो रीडिंग से रिलेटेड चीजें हो गई, राइटिंग का हो गया, प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स हो गए. तो जो ये एकेडमिक एरिया से रिलेटेड जो जितने भी स्किल्स हैं, उन सारे पे स्पेशल एजुकेटर काम करता है जनरली. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर रखना है. और ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें क्या है जनरली होता है कि तीनों चीजें ये साथ चलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम ओटी पे ही हम इनिशियली बच्चा का हाइपर एक्टिविटी है, बैठ नहीं रहा है, तो हम ओटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट पे फोकस करते हैं. एजुकेशन कहीं ना कहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये बात कि मैं खुद स्पेशल एजुकेटर हूँ, बट इट्स अ रियलिटी. इसी वजह से हमारा जो स्कूलिंग है, जो मैन स्ट्रीमिंग इंक्लूसिव एजुकेशन है, दैट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल. बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बच्चे को आते हैं क्योंकि दे आर नॉट रेडी फॉर स्कूल. तो बेसिकली स्कूल के लिए रेडी करना, जो एकेडमिक वाला एरिया है, जो स्कॉलास्टिक एरियाज में बच्चे को रेडी करना, स्पेसिफिकली रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक स्किल्स, है ना, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स पे काम करना, लाइक विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, ओटी काम कर रहे हैं वो उनका. मे बी अब मैं एक सेम एग्जांपल आपको वही दे रहा हूँ कि ऐसी सपोज दैट बीडिंग की एक्टिविटी है, बीडिंग ओटी भी करा रहा है, स्पीच थेरेपिस्ट भी करा है, एजुकेटर भी करा रहा है, लेकिन तीनों थेरेपिस्ट के गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं. हो सकता है जब स्पीच थेरेपिस्ट बीडिंग करा रहा है तो उनका टारगेट वहां पर बच्चे को कहीं ना कहीं कलर्स को बुलवाना, साइज को बुलवाना, बिग है, स्मॉल है, वो कहीं ना कहीं वो स्किल उसमें यूज कर रहा है, उसने लैंग्वेज एसोसिएट किया है बीडिंग के साथ. ओटी का जब बीडिंग करवा रहा है तो ओटी का हो सकता है मेन टारगेट वहां बच्चे की फाइन मोटर को इंप्रूव करना है,
लेकिन जब वो एजुकेटर करा रहा है तो एजुकेटर क्या हो सकता है कि एजुकेटर बच्चे को हो सकता है एक पैटर्न का कॉन्सेप्ट दे रहा हो, क्योंकि पहले आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, पहले आपको ब्लू डालना है, फिर येलो डालना है, फिर ग्रीन डालना है। तो बेसिकली वो कॉग्निटिव एरिया जो पैटर्न मेकिंग है उस पर काम कर रहा है। हो सकता है वो बच्चे को वहां बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है एजुकेटर, है ना, या हो सकता है कि वो वहां पर बच्चे को काउंटिंग सिखा रहा है, क्योंकि आप पहले 2 बीट्स डालो फिर एक ग्रीन डालो। तो ये अलग अलग एजुकेटर एक्टिविटी सेम कर रहे हैं बट उनके गोल डिफरेंट है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए इन चीजों में, और थेरेपिस्ट से इसमें बात भी करना चाहिए। हमारा बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट, हमें ये हमारा राइट है कि हम थेरेपिस्ट से बात करके ये डिस्कस करें उनके साथ कि जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं या सपोज दैट हमारा मेन टारगेट क्या है। पेरेंट्स के साथ बैठ के गोल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट ये चीजें चल रही हैं, ये मैं अपने ओटी सर से बोलूंगा वो उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। मैं ये वाली चीजें स्पीच थेरेपिस्ट कर रहे हैं, मैं एज ए एजुकेटर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, तो वो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और वो सारा प्लान, सारे जो मल्टी व्हेन वी आर वर्किंग विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। जब तक हम एक टीम में काम नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स बहुत कम है। ज्यादातर जो सेंटर्स हैं वो एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी वाले सेंटर्स हैं, जैसे ओटी है तो वो ओटी करा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि सेंटर नहीं है बट कम है। स्पीच थेरेपिस्ट के अलग सेंटर है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, वो एक मीटिंग्स नहीं हो पाती थेरेपिस्ट के बीच में जिससे हमें पता चले कि हाँ तीनों लोग मिलकर क्या चीज पे काम कर रहे हैं। या तो ये होना चाहिए कि पेरेंट वो शेयर करें, ओटी से प्लान लेके ओटी का प्लान एजुकेटर के साथ डिस्कस करें कि क्या चीजें ओटी में किस एरिया पे काम हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है। तो जब हम एक बच्चे की पूरा प्रोग्रेस को माइंड में रखते हुए, बच्चे के सारे माइलस्टोन्स को देखते हुए कि हाँ किन किन एरिया है बच्चे की नीड के बेस्ड पे जब हम गोल सेलेक्ट करते हैं तो वो सही डायरेक्शन में हम काम कर रहे होते हैं, बच्चे के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू। मोस्टली क्वेश्चन चैट बॉक्स में स्पीच से रिलेटेड ज्यादा लोगों ने पूछे हैं। तो स्पीच में मेरा वही है कि आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, तो मैं हालांकि बता सकता हूँ बहुत चीजें बट इट्स नॉट राइट प्लेटफॉर्म। एक स्पीच थेरेपिस्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें बता सकते हैं। जैसे जो फरीदा मैम ने पूछा है कि व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर 9-year-old गर्ल हु इज रिसेप्टिव आर वीक, है ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू मास्टर व्हाट आर लेबलिंग इज गुड, शी इज एप्रेक्सिया कैन टेल वन वर्ड। तो जहां तक जनरली है कि जितना ज्यादा हम बच्चे के साथ, एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हम बच्चे को मल्टी सेंसरी फीडबैक देंगे, सब अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो जितना जो भी हम बोल रहे हैं, जितना ज्यादा हम पिक्टोरियल सपोर्ट रखेंगे, विजुअल्स जितने ज्यादा बच्चे के साथ यूज करेंगे, कलर कोडिंग जितना ज्यादा यूज करेंगे स्पेसिफिकली राइटिंग में, रीडिंग में, वो बच्चे के लिए बहुत हेल्प करता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ जब आप ये चीजें यूज करते हो, कलर कोडिंग, पिक्टोरियल, वो कॉन्सेप्ट बच्चा कहते हैं ना कि एक्चुअल में सीख रहा होता है, जनरलाइजेशन बेटर होता है और बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है उस कॉन्सेप्ट में, राइट। ओके, एनी आई कैन टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई थिंक इट्स टाइम टू वाइंड अप, Right. वी कैन टेक वन मोर। Yeah, hello sir. यस सर, प्लीज गो अहेड। यस, मेरा बेटा 6 साल का है और अभी ओटी सेशंस भी चल रहे हैं उसके लिए, काफ़ी 2-3 ईयर्स से, और थोड़ा हाइपर एक्टिव काफ़ी है, और स्कूल रेडीनेस के हिसाब से राइटिंग में और कलरिंग में काफ़ी चैलेंजेस हैं। मीन्स कलरिंग में आउट ऑफ बॉर्डर जो है वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन विद इन बॉर्डर्स नहीं रह पाता है उसका, और काफ़ी फास्ट हैंड मूवमेंट चलता है उसका, और वो बॉर्डर से बाहर निकल जाता है। काफ़ी मतलब टेक्निक्स ट्राई करी हैं, लेकिन वो जो भी आपने बताए थे वो सब भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उस पर काम नहीं हो पाता है। और राइटिंग वाइज भी काफ़ी बड़े लेटर्स बनते हैं, और मतलब हर तरीके से ट्राई करने के बाद भी वो राइटिंग वाइज नहीं हो पाता। ग्रिप है प्रॉपर। अगर स्पेसिफिकली जो आपका आपने जैसे पॉइंट रेज किया है कि जो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है, अगर वो नहीं आ रहा है, बाउंड्री कॉन्सेप्ट या एक, है ना, तो इसके लिए बेसिकली होता क्या है ना, बच्चे की कहीं ना कहीं जो मोटर परसेप्चुअल स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक हमें जरूरत है असिस्ट करने का। जनरली जब बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद भी होता है ना कि चैलेंजिंग हो रहा है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो इट्स वेरी कॉमन कि बच्चे की जो बेसिक मोटर परसेप्चुअल स्किल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं लैक है। और हम कहते हैं ना कि हम जब एक्चुअल कॉज पे काम नहीं करते, जो यहाँ पर एक्चुअल हमें ट्रीट करने की जरूरत है जिस चीज को, हम वहां नहीं करते, तो है ना कि अब कोई भी चीज को कैसे हम
उसको प्रॉपर रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहला यही है कि उनकी हमें जो मोटर परसेप्चुअल स्किल है उनको चेक करना है। उसके लिए आप जो कुछ एक्टिविटीज मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये है कि जैसे आप फ्लोर पे जो हमारी ब्लैक वाली टेप होती है उससे कुछ एक अलग अलग पैटर्न बना दो। जैसे इवन आप स्टैंडिंग लाइन बना दिया, स्लीपिंग लाइन बना दिया, उस ट्रैप को आप जिगजैग एक ट्रैक बना दिया, उसमें आप कलर टेप यूज कर सकते हैं, ब्लैक रेड जो भी टेप्स आती हैं, और फिर आप बोलिए बच्चे को पूरा बॉडी के साथ उस टेप के ऊपर ही मूव करना है ना। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आपने फ्लोर पे सपोज 4 सर्कल्स बना दिए, आप चौक वगैरह यूज कर सकते हैं या ब्लैक टेप यूज कर सकते हैं, या इवन आप किसी क्लोथ से कोई एक सर्कल बना दिया, एंड फिर उसमें आप कुछ ऑब्जेक्ट्स बच्चे को बोल रहे हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट, सपोज आपने 10 कोई टॉयज हैं, आपने बोला कि वो सर्कल के अंदर ही आपको टॉयज रख के आने हैं, तो बाउंड्री का कॉन्सेप्ट वहां से बच्चे को आएगा कि ओके ये जो टॉयज हैं मुझे इंस्ट्रक्ट, सपोज आपने आप ये बाहर अपने कहीं ड्राइंग रूम में ये चीज कर रहे हैं, आपने एक सर्कल बना दिया और एक बकेट में आपने उनके 10 टॉयज बच्चे के डाल दिए, फिर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि 1 बाय 1 आप टॉयज को पिक करिए और आपको सर्कल के अंदर रख के आना है ना, सर्कल के बाहर नहीं, सर्कल के अंदर पुट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे। दूसरा जैसे जो मैं अभी एक पहले जो क्वेश्चन किसी मैम ने किया था, मैं बता रहा था कि आप इनिशियली जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा थिक कर दीजिए, उस पर कुछ मैजिक स्टिक पेस्ट कर दीजिए, कुछ अलग अलग तरह की पल्सेस वगैरह कुछ वो पेस्ट कर सकते हैं, फेविकॉल लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उससे बाउंड्री हो जाएगा। इवन कटआउट्स हेल्प करते हैं ना, स्टेंसिल्स टाइप के वो कटआउट बहुत हेल्प करते हैं राइटिंग में, राइट। तो ये चीजें आपको ये जब आप बच्चे के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि वो, और सेम एक्टिविटीज फिर आप पेपर पे भी कर रहे हैं। सपोज जो आप एक्टिविटी फ्लोर पे मैंने आपको बताया, फ्लोर पे सर्कल बना के आप टॉयज पुट करवा रहे हैं, फिर आप क्या करिए, आपने एक सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर सिंपल आप कोई भी स्टिकर ले सकते हैं या पेपर टीयर करके बोल सकते हैं कि आपको सर्कल के अंदर ही ये पेपर पेस्ट करना है। तो जब वो एक्टिविटी को आप कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक डायरेक्ट एकेडमिक स्किल के साथ, जो आपने फ्लोर पे एक एक्टिविटी किया वो कॉपी वर्क पे भी सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे बच्चा एक एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर देता है। एक एसोसिएशन और कहते हैं ना कि लिंक बनना वो बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के साथ। कहते हैं ना कि अगर बच्चा एसोसिएट करना सीख जाता है चीजों को, चाहे वो राइटिंग की बात है चाहे रीडिंग की बात है, जो एक एसोसिएशन कॉन्सेप्ट, एसोसिएशन इज बेसिकली कॉग्निटिव स्किल है ना। हम अपनी कोई भी चीज को, हम अपनी मेमोरी को किसी कहते हैं ना विजुअल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। हम जब भी लिख रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ अपनी राइटिंग स्किल को भी किसी न किसी पैटर्न के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो अगर एसोसिएशन बच्चे को करना आ गया तो वो कोई भी स्किल बच्चे के लिए ज्यादा इजी हो जाता है, राइट। तो ये कुछ एक्टिविटी जो मैंने सजेस्ट किया है आप प्रैक्टिस करिए, होपफुली दैट विल हेल्प यू। और लेटर फॉर्मेशन के लिए इसमें क्या ट्राई कर सकते हैं? लेटर फॉर्मेशन एक नेक्स्ट स्टेप है, पहले वही आपको देखना पड़ेगा कि सिंपल जो बना लेता है लेकिन साइज जो हाँ, तो उसमें कभी कभी यही प्रॉब्लम आता है कि अगर प्री राइटिंग क्लियर नहीं है और डायरेक्ट हम लेटर फॉर्मेशन नंबर फॉर्मेशन पे पहुंच गए तो वो क्लियर नहीं होता है। तो अगर प्री राइटिंग स्किल्स क्लियर हैं है ना, देन फिर हम लेटर फॉर्मेशन पे काम करेंगे। लेटर फॉर्मेशन के लिए भी सेम वही, जितनी ज्यादा मल्टी सेंसरी चीजें, पहले आप लेटर्स को क्या ना, आप लेटर बच्चे को बना के दे दिया, उसके ऊपर आप पहले पेपर पेस्ट करवाइए, फिंगर से ट्रेसिंग करवाइए, सेम लेटर्स को आप सैंड में बनाने की प्रैक्टिस करिए, वो लेटर्स आप फ्लोर पे बना दीजिए ब्लैक टेप के साथ, और फिर पूरा बॉडी के साथ उस बच्चे को मूव करने के लिए बोलिए करेक्ट पैटर्न के अंदर। तो जब ये चीजें आप करेंगे तो फॉर्मेशन भी करेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। ओके प्रमोद सर, सो कैन वी वाइंड अप और यू वांट टू टेक एनी अदर क्वेश्चंस? It's a wonderful session, really very informative. Thank you. I guess we have to we can take those questions, right? Yes sir, yes sir. All right. Thank you so much, sir, and thank you. Most welcome, sir. Thank you. It's always pleasure to be on this platform. It's really if I can help in any way, so it is my pleasure. Yeah, thank you. Thank you. Right. Thank you, sir. May I leave now? Yeah, I'm just going to stop this now, so everyone can leave.